So we are going to start coordinate geometry past paper. If you look at question 1, you have given a diagram, and the diagram shows a triangle RST. Write down the gradient of the line ST. So to find the gradient of the line ST, there are two ways. Okay. The first one is rise. There are 4 boxes, and run. There are 6 boxes. Okay. So the gradient is simply 4 over 6 or 2 over 3. And the other method is first write points S and T. तो S के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? T के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ S हैं 0 2, ओके, 0,2, और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ T हैं वो हैं 6 and then 6. So it will be 6,6. So 0,2, 6,6. Now apply gradient formula, that is 6 minus 2 divided by y2 minus y1 over x2 minus x1. So 6 minus 2 divided by 6 minus 0, that is 4 over 6, which is 2 over 3. Next, कोई भी मेथड आप कर लें. The equation of the line that is parallel to ST. So write down the equation of the line that is parallel to ST. Now you have to write any line which is parallel to ST. तो उसकी तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज होंगी ना. क्यों? देखें, y is equals to, we know that the gradient of ST is gradient of ST is 2 over 3. So the line parallel to ST will have the same gradient 2 over 3x plus. Now what will we see? अब उसने कहा कि उसने कोई लाइन स्पेसिफिक नहीं की. They are saying write down the equation of a line that is parallel to ST. So there are hundreds of thousands of lines which are parallel to ST. So it doesn't matter, आप कोई भी लाइन जो है वो ले लें, ठीक है, जो कि parallel to ST हो. I mean to say that this y-intercept doesn't matter. So let's say if I write 1, the other student write 2, 3, 4, it doesn't matter. Okay, जो y कोऑर्डिनेट होता है y is equal to mx plus c के अंदर, यहाँ पे आप c कुछ भी ले लें, ठीक है. तो आई एम राइटिंग 1, लेट्स से कोई और स्टूडेंट लेता है 2, 3, इवन 0 ले लें, दैट डजंट मैटर. बट आपने देखें ये जो 2 over 3x है ना, it ensures that this line is parallel to the ST, okay, because it has the same gradient. Next, the equation of the line with gradient 3 that passes through S. अब आपने ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसका gradient 3 हो and passes through S. It is so simple. Y is equals to mx plus c. So y is equals to 3x plus c. Now how can I find this c? अब देखिए लाइन पास हो रही है S से. So let's write the coordinates of S. तो S के coordinates क्या थे? S के coordinates थे 0, 0, 2. Now let's find the C. So 2 is equals to 3 times 0 plus C. So C is equals to 2. Now let's substitute this value of C back in the equation. So that is my equation of the line which has the gradient 3 and that passes through S. Question 2. P is -1, PQ is 5 minus 1. Find the coordinates of the midpoint. अब देखिए midpoint का फार्मूला क्या था? What was the formula for midpoint? So midpoint is x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. So it means -1 plus 5 over 2, comma
3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या करना है, आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स दोनों ऐड कर लेने हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों ऐड कर लेने हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 2। So minus 1 plus 5 is 4 over 2, that is 2. Then 3 minus 1 is 2. So 2 divided by 2 is 1. So 2 comma 1 is the answer. So find the gradient of the line PQ. अब gradient का फार्मूला क्या था? Minus 1 minus 3 y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So it is minus 4 divided by 6. That is minus 2 by 3. That's it. Given that the length PQ is 2 square root n, where n is an integer, find the value of n. तो आपने distance find करना है between P and Q. So where is P and Q? This is P, this is Q. P is minus 1, 3. Q is 5 minus 1. So let's find PQ. Length का फार्मूला क्या था? x2 minus x1, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 is 5 minus minus 1 square plus y2 is minus 1 minus 3 whole square. So that is, it is without calculator, students. This paper is without calculator, okay? So 5 plus 1, 6. So 6 square is 36 plus minus 1 minus 3 is minus 4 and its square is 16. So it is square root 52. अब इससे आगे एक टॉपिक है सर्ड्स, ठीक है? तो उसको आपने यूज करना है, हाउ टू ब्रेक डाउन दिस 52. So my answer is 52, okay? So I can write this 52 as 4 times 13. Then we know that we can split this square root when there is a multiply sign. So square root of 4 is just 2 and square root of 13 is square root of 13. So now let's compare this with the question. So there is 2 square root n. So who will tell me what is n? So can I say that n is going to be square root, n is going to be 13. So n is going to be 13 using surds. Question 3. The line 2y is equal to 6 minus 3x meets the y-axis at A and x-axis at B. Write down the coordinates of A and B. अब आपको पता है कि अगर y-axis को meet करें तो just go and see my notes. You substitute x0 and in case of x-axis you substitute y0, okay? So for x-axis substitute y0, okay? So for y-axis I'm going to substitute x equal to 0. 2y is equal to 6 minus 3 times 0. So 2y is equal to 6, y is going to be 3. So अब मैंने x को 0 पुट किया था, x 0 and y is 3. So it was A. So these are the coordinates of A, 0, 3. Then for coordinates of B, you will put y is equal to 0. So 2 into 0 is equal to 6 minus 3 times x. Last one. So 0 is equal to 6 minus 3x. 3x is equal to 6. So x is 2. So 2, 0 are the coordinates of B. Then the gradient of the line. तो gradient of the line. अब देखें आपको लाइन दी हुई है ना, आपने उसका gradient निकालना है. तो if you remember, when you have given a line, तो आप उसका gradient कैसे निकालते थे? आप उसमें से y को बनाते थे सब्जेक्ट.
बट प्लीज रिमेंबर दैट आपने x को लिखना है पहले, ओके, -3x + 6. So it will be y is equals to -3/2x + 6/2. So y is equals to -3/2x + 3. So look at this number. This will be my gradient, okay? This -3/2 will be my gradient. Another straight line cuts the x-axis at P and passes through Q. So find the coordinates for the midpoint of PQ. अब midpoint of PQ निकालना है तो it is so simple. -4 + 2 divided by 2, comma 0 + 18 divided by 2. So which will be -4 + 2 is 2, -2/2, 18/2. So that is -1, 9. That's it. Question 4. The diagram shows the three lines x equals to 8. So if you remember, when there is x equal to 8, it means it's a vertical line, okay? It's a vertical line. Then x plus y is equal to 21 has gradient. Let's say if I write y as a subject, तो gradient क्या है? -1. Similarly, y is equals to 1/2x plus 12/2. So its gradient is positive. So its gradient is positive. अब हम ये देख सकते हैं कि अब देखिए इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है ना, तो इफ यू रिमेंबर द नेगेटिव ग्रेडियंट इज दिस डिक्रीजिंग लाइन ना, जो लाइन नीचे जा रही होती है इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. सिमिलरली इसका ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है, ये कौन सी लाइन होगी? जो लाइन ऊपर जा रही है. तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर आपको लाइंस दी हो और ग्राफ भी दिया हो, तो आपको ग्राफ के अंदर पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस लाइन की है. तो जो ग्रेडियंट पॉजिटिव है दैट इज दिस लाइन, और जो नेगेटिव है दैट इज दिस लाइन, ओके? तो मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ. दिस बिलोंग्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21. दिस बिलोंग्स टू 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस x. So find the coordinates of B. B कहाँ पे है? This is B. अब इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये दो लाइन से मिलकर बना है ना. किस किस लाइन से? एक पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली से और एक x इक्वल्स टू 8 से. तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा. चलें, x की वैल्यू पुट करें, इज इक्वल टू 8. सो 12 प्लस 8, so 2y is equals to 20, y is 10. So y is 10, so it means 8 comma 10 is my coordinates of P. That's it. Question 5. P is -4, 4, Q is 3 - 2, M is the midpoint of PQ. Find the coordinates of M. M के coordinates कैसे find करेंगे? -4 plus 3/2 and then 4 plus -2 divided by 2. So M has coordinates -1/2 and 4 minus 2 is 2, so 2/2 is 1. So these are the coordinates of M. Find the gradient of the line PQ. और आपने PQ का gradient find करना है. तो gradient क्या था? -2 - 4 divided by
3 minus minus 4. So it is minus 6 divided by 7. Next, Q is the midpoint of the line PQR. So Q is the midpoint of the line PQR. Find the coordinates of R. Okay. अब आप एक काम करें, एक लाइन बनाएं, PQ. This is P. This is Q. This is R. Okay. और coordinates of P क्या थे? -4, 4. और coordinates of Q क्या थे? 3, -2. और coordinates of R let's say x, y हैं. तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाँ, x प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 equals to 3 comma -2. Then x minus 4 over 2 is equal to 3. Y plus 4 over 2 is equals to -2. So x minus 4 is equal to 6. X is equals to 10. Y plus 4 is equals to -4. So y is going to be -8. So these are the coordinates of R. So these are the coordinates of R. Write down the value of PM divided by MR. PM divided by MR. So PM divided by MR. M क्या था? What was M? M is the midpoint of PQ. Okay. तो M जो था वो मिड पॉइंट था PQ का, तो यहां पे हम लिखते हैं M. ये स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिख दिया M. अब देयर सेइंग PM डिवाइडेड बाय MR. अब देखें इस लाइन के कितने पार्ट्स हैं. So let's put one more dot over here. Okay. So this line is divided into 4 equal parts. This line is divided into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. तो अब वो पूछ रहे, बेसिकली रेशो पूछ रहे हैं ना कि रेशो क्या है. 1:3. Okay. This line has 4 parts. So PM is 1 and MR is remaining 3 parts. तो आप क्या करेंगे? तो PM divided by MR क्या होगा? 1/3. Okay. That's it. Next. So we are on question 6. P is -1, -3. Q is the point 7, 2. Find the coordinates of the midpoint of PQ. तो midpoint of PQ निकालना है. So 1 plus 7 over 2 -3 plus 2 over 2. So 1 plus 7, 8 over 2 is 4. It is -1 over 2. So -1 over 2, comma, -4, comma, -1 over 2. ये मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी है. 4 minus 1 over 2. Next, find the gradient of the line PQ. अब gradient का फार्मूला आपको आता है y2 minus y1 over x2 minus x1. So it is 5 over 6. Next, the line L with equation this passes through point Q
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। सो व्हेन द लाइन पासिस थ्रू सम पॉइंट, तो अब वो पॉइंट लाइन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। सो वो पॉइंट अब लाइन के अंदर पुट करें, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 7 2। सो 2 टाइम्स 7 माइनस 5 टाइम्स 2 is equal to k. 14 minus 10 is k. So k is going to be 4. The line x plus ay is equal to 3 is parallel to a. So find the value of a. अब देखें, when two lines are parallel, their gradients are equal. Okay? When two lines are parallel, their gradients are same. हम एक काम करते हैं. What was L? What was line L? ये देखें, previous part वाली जो line है ना, that is L. अब उसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं ना. पहले जो आपको दी हुई है इसका आप ग्रेडियंट निकालें. सो हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट फ्रॉम सम लाइन. आप y को बनाते हो सब्जेक्ट. सो इट इज -1/ax प्लस 3/a. सो इट मीन्स इसका जो ग्रेडियंट है वो है -1/a, ठीक है. सिमिलरली जो लाइन L है उसकी इक्वेशन क्या थी? 2x - 5y इज इक्वल्स टू k. Okay, but k is 4 is equal to k, but k is 4 from previous part. So now let's make y subject. So it is 2x over 5 minus 4/5 is equals to y. So can I say that its gradient is 2/5? So at the end, at the end, let's equate both gradients. So let's equate both gradients. So a, then make a subject. So a is going to be -5/2. A is going to be -5/2 or 2.5. Question 7. The coordinates of the midpoint of the line AB are 1, 2. The length of the line AB is 10. If the gradient of line AB is 0, it means अगर line का gradient 0 है, तो that's a horizontal line. Okay, that is a horizontal line. Find the coordinates of A and B. Okay. So for this, I think I have to add one more page. चलिए, मैंने खुद से पेज एक ऐड किया. एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. ये आपको पेज दिया नहीं होगा, वैसे मुझे ग्रिड वाले बॉक्स चाहिए, ग्रिड चाहिए था ना. अच्छा देखें, जो मिड पॉइंट है ए बी का ना, दैट इज़ 1 2. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं खुद से. So 1, 2 is over here. This is 1, 2. Now, if the gradient of the line AB is 0, so it means कि वो जो लाइन है ना AB है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है. और अगर उसकी लेंथ 10 है, AB की लेंथ 10 है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट, तो इट मींस क्या होगा? आप 5 बॉक्स राइट पे चलोगे, ठीक है, क्योंकि 5 जो है यूनिट्स ईच साइड होंगे ना, तो 5 बॉक्स राइट पे, 2 3 4 5, ये आपका होगा, नो, 5 बॉक्सेस राइट पे चले तो ये आपका बी होगा. अब इसी सेंटर पे खड़े होके 5 बॉक्सेस लेफ्ट चलें, ठीक है. तो 1 2 3 4 5, ये बना आपका ए. अब इसको ज्वाइन कर लें. तो ये देखें जी, इस पूरी लाइन की लेंथ क्या है? 10. इसका मिड पॉइंट क्या है? 1 2. नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. एक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट इज -4, 2. तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -4, 2, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज
1 2 3 4 5 6 6 comma 2. So the coordinates of A is -4 comma 2 and for B is 6 comma 2. ठीक है। अब जरा लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। लुक एट द नेक्स्ट। अच्छा, ये लाइन क्यों थी, ये मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों बनाई? वो कह रहा था कि इसका ग्रेडियंट जीरो है। तो वी नो दैट द ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। द ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। ठीक है। लुक एट पार्ट बी। In part B, if the gradient of line AB is 3 over 4, find the coordinates of A and B. So find the coordinates of A and B. अब आपने ग्रेडियंट 3 over 4 है तो इट मींस राइज ओवर रन। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। अब देखें, ग्रेडियंट 3 over 4 का मतलब है ना कि 3 डिवाइडेड बाय 4 मीन राइज रन। ठीक है। सो इट मींस 3 वर्टिकल डिवाइडेड बाय 4 हॉरिजॉन्टल ना। सो लेट्स से एक मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है। तो उसका सेंटर मैंने रख दिया, इसमें बॉक्सेस मैटर नहीं करते, बट लेट्स से ये एक दिस इज पॉइंट 1 comma 2। ठीक है। दिस इज पॉइंट 1 comma 2। ये बॉक्सेस कंफ्यूज करेंगे आपको इसमें, बट एनीवे चले यहाँ कर लेते हैं। दिस इज द लाइन, दिस इज द मिड पॉइंट एंड इट्स मिड पॉइंट इज 1 comma 2। ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब देखें भाई, दिस इज राइज ओवर रन। ठीक है। तो ये राइज कितना है? देखिए राइज कितना था, राइज था 3 और रन था 4, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट। अब आपने करना क्या है, लेट्स स्टैंड ऑन द सेंटर। अब सेंटर पे खड़े हो, 4 यूनिट्स आगे मूव करें, 3 यूनिट्स आप मूव करें तो बी आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे खड़े हैं, ग्रेडियंट को देखते हुए, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ग्रेडियंट को देखते हुए मैं 4 यूनिट्स टू द राइट मूव करूंगा। इट मींस अगर मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1 है तो 4 यूनिट्स आगे मूव करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है। एंड देन अगर मेरे पास y ऑलरेडी 2 है तो मैं 3 यूनिट्स और मूव करूंगा ऊपर, तो दैट विल बी 1 comma 2 goes to 1 plus 4 is 5। मैं यहां लिख देता हूं 1 plus 4 दैट इज रन। प्राइस कितना हुआ है, 3 यूनिट्स हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट। ओके, तो ये क्या आएगा, 5 comma 5। So these are the coordinates of B. These are the coordinates of B. Similarly, आप सेंटर पे खड़े हो जाएं। अब आपने आना है नीचे। तो सेंटर पे खड़े होकर नीचे कैसे आएंगे? इट मींस कि आप सेंटर से लेफ्ट मूव हुए हो ना। मैं बताता हूं आपको, लुक एट दीज डॉटेड लाइंस। तो सेंटर पे पहले आप आए 3 यूनिट्स नीचे। ठीक है। इट मींस के 3 माइनस हुआ एंड देन 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट। ओके। अगर आपने सेंटर से ए पे आना है तो आप कैसे आओगे, 3 यूनिट्स डाउन, 4 यूनिट्स लेफ्ट। डाउन का मतलब है 3 यूनिट्स डाउन का मतलब है आप क्या करेंगे, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप क्या करोगे, ऑलरेडी 1 था तो आपने 4 यूनिट्स लेफ्ट मुड़ना है। सो इट मींस 1 minus 4, देन 2, 3 यूनिट्स डाउन, सो 2 minus 3। तो ये क्या आएगा, 1 minus 4 is -3, 2 minus 3 is -1। दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों। तो ये हैं आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ओके। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में इस कॉन्सेप्ट को।
तो ये क्या था, -3, ये था -4, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -3, -1, coordinates of B are 5, 5. It was a wonderful question. It was a wonderful question. Moving on to question 8. A is the point, ऑल्दो कि ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज़ का पार्ट बनता है, बट हम यहाँ भी ट्राई करते हैं इसको. A is the point 5, 2. B is the point 9, 6. AC is parallel to the x-axis, CB is parallel to the y-axis, means AC horizontal line है और CB जो है वो vertical line है. The equation of the line AB is x minus y is equal to 3. So find the coordinates of C. अब देखें ये जो लाइन है, पहले आप एक काम करें, आप जितने पॉइंट्स हैं वो लिख लें. तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 9, 6. जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो थे 5, 2. सो इट मीन्स ए को देखते हुए इट मीन्स दिस हाइट इज 2. दिस इज y इज इक्वल्स टू 2. ओके. इफ यू लुक एट b, तो इट्स अ वर्टिकल लाइन और इसमें x की वैल्यू 9 है, तो वी कैन से दैट इट इज x इज इक्वल्स टू 9. So looking at these two lines, this is y2, this is x9. So can I say that the point C has coordinates 9, 2? Can I say that the coordinates of C are 9, 2? Now look at part C. जो B part है वो मिसिंग होगा, अभी वो किसी और चैप्टर का हो. Probably it would be from inequalities. The point AB where A and B are integers lies inside the triangle ABC. अब एक पॉइंट AB है और वो इनसाइड है ट्राइंगल के, ठीक है. वो ट्राइंगल के इनसाइड कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है. ये पॉइंट जो आपको दिया हुआ है ना, इनसाइड का मतलब है बाउंड्री पे नहीं है और बाउंड्रीज इंक्लूड हैं भी नहीं, बिकॉज इफ द लाइंस आर डॉटेड इट मींस बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड. ओके, बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड. अब आपको देखें, अगर इस पॉइंट ने इनसाइड होना है, सो इट मींस ए की जो वैल्यू है ना, देखें जो ए के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 5. देखें ये जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, दैट इज 9, ठीक है. तो जो ए की वैल्यू है दैट इज एक्स वाली वैल्यू. सो एक्स कैन वेरी फ्रॉम 5 to 9. अब 5 और 9 तो हो नहीं सकते बिकॉज इट्स अ डॉटेड लाइन. तो वी कैन से दैट ए कैन वेरी 6, 7 एंड मैक्सिमम 8. तो क्योंकि ए जो है वो एक्स की वैल्यू है और वो वेरी कर सकती है 6 से 6, 7, 8, नॉट 9. ओके, 9 तो एग्जैक्ट बाउंड्री है ना. लुक एट बी. व्हाट इज बी? बी इज y coordinate. If you look at this, so what was the minimum what was the minimum height of y? तो वो तो 2 है, but this is a dotted line, तो 2 तो हो नहीं सकती. So it can vary 2, 3, 4, 5 and 6. So 2 नहीं हो सकती. It means b can be 3, 4, 5, not 6, because 6 टॉप पे बाउंड्री पॉइंट है और वो इंक्लूड नहीं है इन केस ऑफ डॉटेड लाइंस. सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. अब हमने क्या करना है, हमने हमने किसी कोई एक पॉसिबिलिटी यहां से चूज करनी है, एक या दो या कुछ भी. इट लाइज ऑन द लाइन, सो इट मींस दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन दिस लाइन. अब क्या करेंगे आप, अब वन बाय वन ए की वैल्यूज यहां पुट करें. ए इज योर एक्स. प्लीज रिमेंबर दैट द वैल्यूज ऑफ ए आर एक्स, द वैल्यू ऑफ बी आर वाई. ओके, ये y है और ऊपर वाले क्या थे, x थे. अब देखें y इज इक्वल्स टू 1/2x. सो इट मींस अगर मैं y को ले लूं, y को ले लूं 4 और x को ले लूं 8. ये देखें, y को ले लूं 4 और x को ले लूं 8, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है ना, 4 इज इक्वल टू 4. सो आई कैन से दैट माय a value is 8 and my b value, which is y value, is 4. Okay, this is x, this is y. So a is 8, b is 4. इसके इस क्वेश्चन के दो और भी मेथड्स हैं.
बट दे आर फ्रॉम द इनइक्वालिटीज। ये ट्रायल एंड एरर वाला काम ठीक है, आप सारी ए की वैल्यूज लिख लें, सारी बी की वैल्यूज लिख लें, और फिर देख लें कि जो उसने एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई थी, दिस वाज द एक्स्ट्रा कंडीशन, तो इन वैल्यूज में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो व्हेन आई हैव सीन, तो अगर मैं बी को ले लूँ 4 मीन्स वाई की वैल्यू 4 ले लूँ और एक्स की वैल्यू 8 ले लूँ, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ओके, देयर इज वन मोर सोल्यूशन। एक और मैंने अभी भी नोट किया है, देयर इज वन मोर सोल्यूशन। लेट्स अगर मैं ए ले लूँ 8, सॉरी ये तो हो गया था, ए ले लूँ 6 और बी ले लूँ 3। ठीक है, ए मैंने चूज किया 6, दैट इज एक्स वैल्यू, और बी मैंने चूज किया 3, दैट इज वाई वैल्यू। तो ये देखें, ये भी सेटिस्फाई कर रही है इसको, y इज इक्वल्स टू 1/2x। ठीक है, तो 3, basically 3 is y is equals to 1/2, x is 6. So yes, 3 is equal to 3. So you can also say a is equal to 6, और तो इनमें से कोई भी आंसर आप लिखेंगे तो you will get full marks. Okay, a is 6 and b is 3, or a is 8, b is 4. Moving on to question 9. So you have given a diagram meets the x-axis at a and b. So find the coordinates of a. अब देखें जो अच्छा उसने कहा एक्सीज, एक्सीज मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो एक्सीज मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ। अब वो देखें एक्स एक्सिस को मीट कर रही है कहाँ पे, ए पे। तो इफ यू रिमेंबर, एक्स एक्सिस को मीट कर रही है ए पे, तो आप क्या पुट करेंगे, वाई को 0। So let's substitute y0, 3 times 0 plus 2 times x is equal to 13. So 2x is equal to 13. So x is going to be 13/2, which is 6.5. So it means 6.5 comma 0. That was question 9. So moving on to question 10. अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स में भी आपको वेक्टर्स आनी चाहिए। सो दोज ऑफ यू हु डिड नॉट स्टडीड वेक्टर्स कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, बट मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें वेक्टर्स भी शायद यूज़ होगी और मे बी ट्रांसफॉर्मेशन भी किसी पार्ट में यूज़ हो। लुक एट पार्ट ए। So you have given a diagram. The diagram shows a line segment AB joining point A and B. Find the coordinates of the midpoint of AB. तो अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है ए बी का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 + 5/2 कॉमा 3 + 4/2, so that is 7/2 comma 7/2. What a coincidence. So 3.5 comma 3.5. ए बी इज मैप्ड ऑन टू सी डी बाय अ ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, ये 9th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता आपको, ये आप 11th में पढ़ते हो। ठीक है ना, एक लाइन को ट्रांसलेट करें विद सम वेक्टर। तो करना बेसिकली ये होता है कि यू विल सिंपली ऐड दिस वेक्टर इन ए एंड बी। ठीक है, 1 by 1 चैलेंजिंग। ए के अंदर ऐड करते हैं, आइदर यू कैन राइट इट ए इन वेक्टर फॉर्म। तो ए बेसिकली 2 3 है, और इसके अंदर ऐड करें तो क्या आएगा, 2 प्लस -1 इज -1, 3 + 1 इज 4। दैट्स इट। ऑल्दो हम डी के अंदर भी ऐड कर देते हैं, बट दैट इज नॉट नीडेड। ओके, मैंने बिकॉज देखें, जो ए है ना, ए बिकम्स सी एंड बी बिकम्स डी, बट दे आर ओनली आस्किंग फॉर सी, नॉट फॉर डी। अगर वो डी कहते हैं तो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड दिस वेक्टर इन बी एज वेल। ओके, चलिए मैं यहां कर देता हूं। तो व्हाट वाज बी, 5 4 प्लस -3 1. So 5 minus 3 is 2, and 4 plus 1 is 5. So you know the coordinates of D are 2 comma 5, which is not needed.
ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे, ये क्या हो गया। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ऑल्दो वी ओनली नीड सी। ठीक है, नेक्स्ट, AB is mapped onto FG by a rotation 90 degree clockwise with a center 1 4। अब बच्चों 11th वालों, AB is mapped onto FG by a rotation of 90 degree clockwise। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, 1,4। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ रोटेशन, 1,4। ठीक है, सो AB को रोटेट करना है आपने। ठीक है, 1,4 इज माय सेंटर ऑफ रोटेशन। चलें, दिस इज माय सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, 1,4। अब आपने लुक एट ए, तो फ्रॉम सेंटर टू रीच एट ए आई विल गो 1 डाउन 1 राइट। ओके, सो प्लीज रोटेट दिस डायग्राम 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो डाउन आया हुआ है वो लेफ्ट आ जाएगा, और जो राइट गया हुआ है दैट विल कम डाउन। एग्री, एग्री। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये देखें, लुक एट दिस डायग्राम, दैट इज माय सेंटर। ओके, सो फ्रॉम सेंटर टू ए, दिस इज माय सेंटर। तो मैंने क्या किया, मैं बेसिकली सेंटर से ए पे आने के लिए 1 डाउन 1 राइट, सो 1 राइट 1 डाउन, दिस इज द वे, 1 राइट 1 डाउन। सो नाउ लेट्स रोटेट इट। ये देखें, आई एम गोइंग टू रोटेट दिस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो लुक एट दिस, ये देखें, so it becomes 1 down 1 left। okay, 1 down 1 left, so 1 down 1 left, so you will mark dot here। तो ये है जी आपका A 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट 1,4 रोटेट होके ये पिंक पॉइंट बना है। ठीक है, ऑल्दो हमें ओके, अब बताएं B क्या बनेगा। देखें, B फ्रॉम सेंटर इज हाउ मेनी बॉक्सेस, देखें 4 बॉक्सेस टू द राइट, नो अप डाउन। तो इस लाइन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या होगा, इट इज सो सिंपल, इट विल बी हेयर। ठीक है, तो बी रोटेट होके कहाँ आएगा, 90 डिग्री पे कहाँ पे आएगा, 1 0 पे। ठीक है, तो ये है जी आपका क्वेश्चन क्या था, ए बी इज मैप्ड ऑन टू एफ जी। तो पहला पॉइंट था आपका एफ, दूसरा पॉइंट था आपका जी। सो पहला पॉइंट था आपका एफ, दूसरा था जी, एंड दे आर सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,0, 1,0। So find the equation of AB. Find the equation of AB. अब आपने AB की इक्वेशन निकालनी है। So again, it is so simple. बेसिकली ये 2-3 चैप्टर्स मिल के एक क्वेश्चन बना हुआ था। So first find the equation of AB. तो ग्रेडियंट क्या होगा, m is equals to 4 minus 3 divided by 5 minus 2. So that is 4 minus 3 divided by 5 minus 2. 4 minus 3 is 1, 5 minus 2 is 3. Then y is equals to mx plus c. Y is equals to 1 over 3x plus c. Now let's find c. So I'm going to find c using coordinates of a. So a has y coordinate 3 and x coordinate 2. So 3 is equals to 1/3 of 2 plus c. So 3 is equals to 2 over 3 plus c. So 3 minus 2 over 3 is equal to c. So 9 minus 2 is 7 over 2.
So y is equals to 1 3x plus 7 over 2. That's it. कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी? No, it is 7 over not 3, it is 7 over 3, okay, not 2. That's it. Question 11. A is point 0, 3, B is the point, कितना टाइम हो गया? Okay. 1, 5 and C is the point minus P minus 1. Find the equation of the line AB. अभी हमने ऊपर किया था. तो पहले आप क्या करते हो? आप निकालते हो ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट क्या आएगा इसका? ग्रेडियंट इज 5 minus 3 over 1 minus 0. So m is equal to 5 minus 3 is 2. 1 minus 0 is 1. So m is equals to 2. So y is equals to 2x plus c. तो c कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग आइदर a और b. So I am using a. So 2 times 0 plus c. तो c क्या आया? 3. So the equation of line is 2x plus 3. 2x plus 3 is the equation of line AB. The gradient of the line BC is minus 3 over 4. अब बताएं what will be the gradient of BC? Look at point B. B has coordinates 1, 5. C has coordinates P minus 1. तो BC का gradient निकालते हैं. So it is minus 1 minus 5 divided by P minus 1 is equals to negative 3 over 4. ये कहाँ से आया? It was gradient of these 2 points. Okay. तो -1 -5 डिवाइडेड बाय p -1. ठीक है. अच्छा, जिस बच्चे ने जो चैप्टर नहीं पढ़ा होता, लाइक जो क्लास 9 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने देखे वेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों नहीं पढ़े होते ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है या वेक्टर्स का यूज़ हो रहा है. ठीक है, मुझसे बार बार पूछना नहीं है आपने. ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर का कॉन्सेप्ट है तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन. -6 over p minus 1 is equal to minus 3 over 4. Minus will be cancelled out on both sides. So 6 times 4 is equal to 3 into p minus 1. So 24 is equal to 3 p minus 3. Basically 24 plus 3 is equal to 3p. So 27 is 3p and p is 9. P is going to be 9, okay? The coordinates of PQ are given. Find the coordinates of midpoint. तो ये भी बहुत सिंपल है. तो midpoint कैसे फाइंड करते थे? 0 plus 10 over 2, 7 plus minus 1 over 2. It is 5. 7 minus 1, 6 over 2 is 3. So 5, 3. The length of PQ is square root 9, square root n. तो चलें लेंथ फाइंड कर लेते हैं PQ की. 10 minus 0 का स्क्वायर and then -1 minus 7 square. So it is without calculator. 100 plus 64. It is 164 and your value of n is just 164. देखें ना, आपने इसे कंपेयर करना है उसके साथ, तो n is going to be this inside value, that is 164. Okay. So students, in the next class we will start from question 13. तो आज मैं आपको 2 वीडियोस में इंशाल्लाह ये 10 ईयर्स के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पेपर 1 के क्वेश्चन भेज दूंगा. ठीक है, आपने एक चीज़ पे लाजमी फोकस करना है बच्चों, कि जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है जस्ट आपने वो क्वेश्चंस करने हैं. तो लाइक अप टू क्वेश्चन 12 व्हाट आई रिमेंबर, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो वेक्टर्स या ट्रांसफॉर्मेशंस के थे. तो जो ग्रेड 9 वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन स्किप दीज क्वेश्चंस. अदरवाइज बाकी सारे जो 11th और
हाँ 11th और 10 वाले बच्चे भी हैं, वो भी सारे बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। 10th वाले ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।